Good morning, student of class 6. I am your Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the fourth chapter, which is agriculture. Okay, chapter number 4, agriculture. So let's start. Here you can see the content of this chapter. I already have discussed first three topics, which is agriculture and the importance of agriculture, factor influencing agriculture, and types of agriculture. Today, and also types of crops. I already have discussed types of crops, and today I am going to discuss about the agriculture development and green revolution. The green revolution is very important. Okay, and agriculture in India. So in this video I am discussing about these two topics. Okay, so let's start. Here we can see condition for the growth of crops, and the major producing countries. Okay, so that means here you can see a table. Okay, here you can see a table. In this table, main content is the growth of crops, and the major producing countries. Okay, then first is rice. So here you can see rice, a staple food grain for a large part of the world. Rice grows best in hot wet climate. That means where the rice is growing very much in hot climate. Okay, hot wet climate. It needs fertile alluvial or clayey soil which can retain water. That means जो alluvial and clayey जो soil होता है, जो मिट्टी होता है, वो क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है, मतलब पकड़ के रखता है. उस मिट्टी में क्या होता है कि ज़्यादा अच्छी तरह से राइस जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से हो सकता है, ग्रो हो सकता है. ओके, एंड द हॉट वेट क्लाइमेट, it needs to be hot wet climate. Next is wheat is an important cereal crops. Wheat needs to cool dry climate. Okay, cool dry climate. That means जो कूल ड्राई व्हीट के लिए मेन जो थिंग है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कूल ड्राई क्लाइमेट. ओके, इट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन लूमी सॉइल. ओके, वेल ड्रेन लूमी सॉइल. Okay, next is maiza. It is both a food and fodder crops. It grows in the fertile well drained soil and needs more moderate climate. Okay, so these are the main crops, and the condition of growth. Okay, condition of growth. Some example are tea. Tea is a evergreen tropical plant which is grow well in the moderately hot and humid climates and usually grown on the hill, slide and slopes. Okay, next is coffee. Coffee needs relatively cooler climate and lot of rainfall. Generally coffee is grown on the slopey at height at 600 meter to 180 meter. That means coffee and tea are similar. Okay, coffee and tea are similar product crops that needs to be higher ground. Okay, high slope, on the slope or height at 600 to 180 मीटर. दैट मीन्स ये जो टी और कॉफ़ी है ये क्या होता है, सिमिलर क्रॉप्स है जो कि पहाड़ी और क्षेत्रों में, हिली रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है. वन थिंग I want to tell all of you that when the exam comes, only the short question. Okay, you need to read the chapter very carefully to answer this short question. Okay, mainly the exam is short question based, multiple choice question, fill in the blanks. Okay, so all of you need to read the chapter very carefully. Okay, read the chapter very carefully to answer this question. Next is, here you can see India important crops and main प्रोड्यूसिंग स्टेट. ओके, स्टेट दैट मीन्स जो इंडिया में है कौन सा क्रॉप होता है और कौन से स्टेट में होता है. यार यू कैन सी द टेबल. राइस वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, उड़ीसा. ओके, व्हीट उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा. माइजा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान. Okay, so all of you need to go through this table. Okay, go through this table, and here you can see the image of India. Here you can see the image of India
which is describe the different types of crops in different location. Okay, that means ये जो मैप है, ये मैप क्या दिखा रहा है हम लोगों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट लोकेशन, कौन से जगह पे कौन से क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं वो इस मैप पे आसानी से दिखाया जा सकता है. ओके, यार यू कैन सी द ग्रीन मीन्स राइस. ओके, saffron means wheat. The next thing is traditional agriculture and modern agriculture. Okay, difference between traditional agriculture and modern agriculture. दैट मीन्स जो पहले ज़माने में जो एग्रीकल्चर होता था वो ट्रेडिशनल था, अभी जो एग्रीकल्चर होता है वो लगभग बहुत मॉडर्न टाइप होता है. ओके, इन इंडिया. So here you can see the first image, preparation of fields in done manually traditional agriculture. यहाँ पे in this image here you can see the process of plug in the agriculture land. Okay, preparation of field done by manually in traditional, a plug is tied to a cattle and dragged through the field टू टिल द सॉइल. ओके, दैट मीन्स जो मिट्टी है उसको टिल करने के लिए जो क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जो मेनली ट्रेडिशनल, जो मेनली वुडन इंस्ट्रूमेंट्स है उसको ज़रिया लेके हम लोग पहले क्या करते थे, मिट्टी को टिल करते थे. ओके, नेक्स्ट इज हेयर यू कैन सी इन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड विथ टूल्स लाइक स्टिकल्स. इन दिस पिक्चर द फार्मर इज पिकिंग कॉटन बाय हैंड. दैट मीन्स यहाँ पे जो दिख रहा है इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि हार्वेस्टिंग हो रहा है कहाँ से, हाथ से. ओके, हाथ से जो फार्मर है वो हाथ से काम कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इरीगेशन इज़ डन बाय हैंड. ओके, इरीगेशन मीन्स जो सिंचाव है वो डन बाय हैंड. वाटर इज़ बॉट फ्रॉम वेल्स एंड हैंड्स पम्प एंड ट्यूबवेल्स, सम ऑफ व्हिच मे बी मॉइस्चराइज. ओके, दैट मीन्स जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए पास के कहीं से भी ऑयल से होगा, पम्प से हो गया, ट्यूबवेल से हो गया, उसको पानी ले आते हैं और क्या करते हैं, सम ऑफ व्हिच में भी मोटराइज्ड. ओके, कहीं जगह पे क्या होता है, मोटर से भी क्या होता है जो पानी दिया जाता है. ओके, नाउ कम्स टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर. ओके, modern agriculture machinery is used for harvesting of modern agriculture. Here you can see a big machine, huge machine which is harvesting the crops. Okay, harvesting the crops. Next is the modern agriculture, tractors are used to till the soil. That means पहले ज़माने में क्या होता था, गाय भैंस लेके हम लोग मिट्टी का सिंचाई करते थे, लेकिन अभी क्या होता है, इन मॉडर्न एग्रीकल्चर ट्रैक्टर आर यूज टू टिल द सॉइल. नेक्स्ट इज in modern agriculture, depending on the nature, crops are the climate, several innovative methods irrigation and practice like drip irrigation, irrigation and subsurface irrigation. Okay, in this picture above, sprinkle are being used to irrigate the field. दैट मीन्स जो क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई खेत में जाएंगे तो देखा जाएगा कि एक स्प्रिंकलर होता है जो कि चारों तरफ घूम के पानी देता है. ओके, थोड़ी डिस्टेंस पे जाके वो लगा होता है एंड वो घूम के जो क्रॉप्स होता है उनको पानी दिया जाता है. ओके, पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में होता था हाथ से दिया जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया, मशीनरी का ज़माना है तो इसमें मशीन का यूज़ किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट इज़ agriculture development and the green revolution. Okay, agriculture development and the green revolution. Mainly agriculture development refers to the methods used and measure taken increase the agriculture production. Okay, increase the agriculture production. It is an important steps to ensuring the food security of a country, especially developing countries with rising population. That means यहाँ पे जो बात बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या यूज़ हो, क्या किस लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, इंक्रीज़ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो हम लोग फसल उगाते हैं उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए. ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फूड सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री. जो फूड सिक्योरिटी है मतलब कभी भी जो क्रॉप्स है, जो फूड है उसका कमी ना हो. ओके, फॉर ए कंट्री, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री, ऑल ऑफ नो दैट
इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, ओके, एंड राइजिंग पॉपुलेशन, दैट मीन्स हम लोगों का जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है एंड यहाँ पे पॉपुलेशन दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। तो इन जैसे कंट्रियों के लिए फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एम्स टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ लो yield क्रॉप्स ऑफ टू डिजीज पेट्स, lack of irrigation and poor quality seeds. It's aim to maximum output from pieces of land and sustainable manners and improve the quality of produce. दैट मीन्स जो यहाँ पे जो मेन एम है वो क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है उसमें फर्टिलाइटी को जो अच्छा करना है, उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी है उसको जो ग्रो करना है, ओके। सो जो फूड सिक्योरिटी है उसको मेन इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ओके। सो मेन थिंग इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Green Revolution refers to a series of reforms were introduced in agriculture between 1930s to 1970s, which resulted dramatically increase of the food production. Okay, that means जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस लिए यूज़ हुआ था? एग्रीकल्चर को, हम लोगों के देश में एग्रीकल्चर को जो ग्रो कराने के लिए, ओके, ग्रो कराने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। कहाँ कब लाया गया था? 1930 में लाया गया था और 1970 तक चला था, ओके। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2 भी है, ओके, 1930s टू 1970s। एंड उससे क्या देखा गया है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो गया था, ओके। नेक्स्ट इज़ the key features of green revolution. Here you can see some key features of the green revolution. The uses of high yielding variety of seed, that means जो seeds है वो बहुत ही अच्छा है और उसमें क्या होता है, उस सीड से क्या होता है जो अच्छी फसल होगा, ओके। नेक्स्ट इज mechanism of agriculture practice. Next is high use of chemical fertilizer, increased of use of pesticides, significance of use of irrigation, increased use of electrical on farms, okay. So these are the main key features of green revolution. Next is benefits of green revolution. What are the main benefits of irrigation? We all know that increase of productivity, increase of efficiency of agriculture practice, okay. So mainly these are the benefits on green revolution. All of you need to read this topic from your book, okay. Main thing is the green revolution is introduced for improvement and increase the productivity of our crops, okay, and food security. Next is food security. दैट मीन्स मेन जो बात है ग्रीन रिवोल्यूशन का वो है हम लोगों का जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलपमेंट करना, फूड सिक्योरिटी लाना, अच्छा जो क्रॉप्स है उसको उगाना, ओके। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड उसमें जो मेकनिज़म है वो अच्छा यूज़ करना, मशीनरी है जो अच्छा यूज़ करना, उसमें बेनिफिट्स क्या क्या है जो अच्छा जो कि इंक्रीज़ हो गया है, जो एग्रीकल्चर है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गया था। देयर आर इंक्रीज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ओके, मोर एफिशिएंट एंड लैंड ऑल्सो मीन टू फ्यूअर फॉरेस्ट नीडेड टू बी क्लियर फॉर एग्रीकल्चर। बहुत सारा ऐसा फॉरेस्ट है जिसको क्लियर करके उसमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड तैयार किया गया था। मल्टीपल क्रॉपिंग ब्रॉड प्रोडक्शन कॉस्ट डाउन, दिस इन टर्न लोअर टू प्राइस ऑफ द फूड क्रॉप्स, दैट मीन्स जो प्राइस है फूड क्रॉप्स का वो भी कम हो गया था, ओके। नेक्स्ट इज डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. High use of fertilizers and pesticides populated the soil and groundwater. This is the very important, okay. What are the main demerits or disadvantages of green revolution? First point is the high use of fertilizers and पेस्टिसाइड्स पॉपुलेटेड द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, दैट मीन्स जो हम लोग मिट्टी को फर्टिल करने के लिए एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो के सॉइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, ओके। और जो ग्राउंड वाटर है जो हम लोग पानी पीते हैं ग्राउंड वाटर, उसके लिए भी बहुत ही ख़तरनाक है, ओके। हेवी यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेड टू द डिप्लीशन ऑफ सॉइल्स और नेचुरल फर्टिलाइजर, दैट मीन्स जो एक मिट्टी का जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वो ख़त्म हो जा रहा था, ओके। मेनी ऑफ न्यू फार्मिंग मेथड्स वर एक्सपेंसिव एंड बेनिफिटेड ऑन रिच फार्मर्स, दैट मीन्स जो कि मॉडर्न ज़माने में जो कि मेनली
एक्सपेंसिव एंड जो मेथड्स है वो खाली जो फार्मर्स है, बहुत ही रिच फार्मर्स है, उन लोगों को भी काम में आता था। ओके, द यूज़ ऑफ मशीन इन फार्मर रिप्लेस ह्यूमन लेबर। दैट मीन जो मशीन आ गया है, अब तो क्या हो गया है, मशीन आ गया है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स का जो काम है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो बहुत सारे फार्मर्स क्या होता है, बेरोज़गार हो जा रहे हैं। ओके, तो एंड द न्यू फार्मिंग मेथड ऑल्सो यूज्ड मोर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जो नया तरीका का जो फार्मिंग है वो क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रिसिटी लेता है। दैट मीन्स जो यूज़ ऑफ कंज्यूम्शन ऑफ पावर है वो ज़्यादा लेता है और वाटर भी ज़्यादा लेता है। ओके, intensive irrigation led to the water logging and increased the soil salinity in many places, resulting the sharp fall yield. Okay, so these are the main demerits of green revolution. All of you need to read the demerits very carefully. Next is agriculture in India. Mainly India is an independent country and it can produce enough food for its people. Okay, for its peoples. And at present over and half of Indian population depends on the agriculture of livelihoods. दैट मीन्स जो हम लोगों का जो इंडिया है वो बहुत ही अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए। मेनली जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है। ओके, सो ऑल ऑफ ओवर हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स जो इंडिया का हाफ पॉपुलेशन है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस अमंग द ऑफ द इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। जो इंडिया का मेन जीडीपी है वो भी कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। ओके, एंड यू कैन see the so this is the main 3 point and you need to go through this point. Okay, only need to read this point. Next is problems in India's agriculture. Okay, problems in India's agriculture. There are many problems. More than 2/3 of farmers India are marginally farmers who are very small and less than 1 hectare. Okay, that means जो आजकल के जो farmers है वो बहुत ही स्मॉल फार्म्स है, जो फार्म है ओनली 1 hectare लैंड। ओके, ओनली 1 hectare, दिस बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ सब डिविजन ऑफ लैंड। ओके, when a farmer passes down or his or her land to be next generation, the land is divided between the children and the land gets divided further between their children and so on. That means जो एक फार्मर है वो उसका जो लैंड है, उसका लैंड जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें डिवाइड हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लैंड मेनी फार्मर प्रैक्टिस सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, दैट मीन्स जो अभी क्या हो गया है, जो छोटा छोटा ज़मीन हो गया है उसमें क्या है, ओनली क्या हो गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वही किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ऑफ दिस फार्मर फोर्स टू इनटू डेबिट सिंस द एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द इनकम। दैट मीन्स जो मेनली पॉइंट है, जो पॉवर्टी लेवल है वो फार्मर्स का बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अभी क्या हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है वो क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है जो इनकम से। ओके, next is inequality on the more characterized features like Indian agriculture. Around 76% 67% of farmers in India are less than 1 hectare size of and then occupy just 25 agricultural land. That means ये क्या हो, अभी क्या हो गया है, जो ओनली 65% इंडियन फार्मर्स है उन लोगों के पास लेस देन 1 hectare साइज ऑफ लैंड है। ओके, लेस देन 1 hectare साइज ऑफ लैंड। एंड ये बहुत ही एक प्रॉब्लम है जो कि दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, ओनली 5% फार्मर ओवर 4 hectare ऑक्यूपाई 32% ऑफ एग्रीकल्चर है, ओनली 5%। ओके, एंड द सेम पैटर्न आर रिफ्लेक्टेड इन द इनकम ऑफ अर्नड फार्मर्स. So basically these are the main problems in Indian agriculture. Today's video is very long. Many things to be discussed in this chapter. So next thing is inside question answer. Here you can see inside question answer. I will provide this question answer in my YouTube description. All of you need to download this question answer. Okay, question answer. And the main thing is that all of you should read the book carefully. Okay, all of you should read the book carefully. And when the exam comes, exam is mainly MCQ based, so all of you should read the book carefully. Okay, I always told that read the chapter carefully. Everyone should read the book carefully. Okay, so this is the main question answer of this chapter. And
in my next video I will discuss about the exercise short question. Okay, exercise short question in my next video. So till then, take care, goodbye and thank you.